Hello students, how are you? Hope that you all are fine. In today's class we are going to wind up this chapter, that is visualizing solid shapes. I have given you the three videos related to that. One is the previous one in which the introduction was done, and before on a Saturday an activity has been done, and in today's class we are going to first of all, what do you mean by word solid? Solid का meaning क्या है? What do you mean by word solid? Solid is a three-dimensional figure which occupies space and has length, breadth and height and some of the solids. Now if we take the example of solid, student, this is the best example of solid we have. Okay, this is a cube and this is called faces. These surface is called the faces. This, and it has six faces, 1 2 3 4 5 and 6. I have literally leave it blank to show you the top view, and these are the surfaces. And now after the faces, the surface of solid is called the face. Now what is the edge? The line segment where the line segment, these is called the edge. This is called the edge. Two faces of solid meets the line segment which are called edge. जहाँ पर two faces, this face और ये face आपस में, this is called edge, this is called edge, this is called edge, this is called edge, this is, in this way the cube has 12 edges. And now the vertex where the three edges meet, 1 2 and 3, this is an edge, 1 2 and 3, this is an edge. In this way it has the 8 vertex. In this way it has the 8 vertex. Room is also an example of a solid where you can take the 6 faces, walls and the floor and the roof. Room is also the where we can take the example of face, and the corners is called the edges, and walls where they meet, they are called the, where the three walls where the three edges are meeting, they are called the vertex. They are called the vertex. Is that clear? Now students, we talk about the solid. Solid in we talk about the face. Face we talk about the edge. Edge in we talk about the vertex. This is a solid. Now we talk about the polyhedrons. Polyhedrons. What are polyhedrons? The surface bonded by planes is called a polyhedron. What are polyhedron? A surface bonded by planes is called polyhedron. सरफेस बॉन्डेड बाय प्लेन्स इज कॉल्ड पॉलीहेड्रन. वो सरफेस जो प्लेन से मिलकर बनती है, दैट इज कॉल्ड पॉलीहेड्रन्स. पॉलीहेड्रन के हमारे एग्जांपल हैं क्यूब, क्यूबाइड. बट क्या नहीं है, ना ही कोन है ना ही सिलेंडर है, क्योंकि इसमें हमारी कर्व सरफेस आ जाती है. ना ही कोन है ना ही सिलेंडर, बिकॉज इसमें हमारी कर्व सरफेस इंक्लूड होती है. तो स्टूडेंट्स, आफ्टर द पॉलीहेड्रन, पॉलीहेड्रन में ना हमारे सर्कल्स आते हैं ना सिलेंडर्स. अब इसमें हमारे कन्वेक्स पॉलीहेड्रन्स, कन्वेक्स मींस जिनका एंगल 180 से लेस हो, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स. और आफ्टर दैट द रेगुलर पॉलीहेड्रन, a regular polyhedron whose faces are congruent. Regular polyhedron is called regular polyhedron. वो polyhedron जिसके faces आपस में congruent होते हैं, they are called regular polyhedron. They are called regular. Again repeating, जिसके surfaces जो हैं congruent होते हैं, they are called regular polyhedron. इसमें हमारे polyhedron में tetrahedron आते हैं जिसके 4 faces होते हैं, hexahedron आते हैं जिसमें 6 faces, octahedron जिसमें 8 faces. तो इस हिसाब से फेसिस के हिसाब से हम इनको पॉलीहेड्रन्स को डिवाइड करते हैं. तो पॉलीहेड्रन्स हो गए
पॉलीहेड्रन्स कौन से हुए? जिनमें हमारे पास क्या होते हैं? प्लेन्स होते हैं, मींस द सरफेस इज बॉन्डेड बाय प्लेन्स। ओके, कन्वेक्स पॉलीहेड्रन्स, रेगुलर पॉलीहेड्रन्स। रेगुलर पॉलीहेड्रन्स कौन से हुए? यस, रेगुलर पॉलीहेड्रन्स, रेगुलर polyhedrons whose faces are congruent, जिनके फेसिस कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दे आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन्स, रेगुलर पॉलीहेड्रन्स। इसके एग्जांपल टेट्राहेड्रन, कितने फेसिस हैं? 4। कितने फेसिस हैं? 4। और टाइप इक्विलेटरल ट्राइंगल, टाइप क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। रेगुलर पॉलीहेड्रन के बाद हमारे पास क्या आता है? प्रिज्म। क्या आता है? प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म इज अ polyhedron whose base and top are congruent, जिनके बेस और टॉप कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जिनके बेस और टॉप जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दे आर कॉल्ड प्रिज्म। पॉलीहेड्रन whose base and top are congruent are called prism, and other faces are parallelogram, और बाकी पैरेललोग्राम, मींस जिनका टॉप और बेस सेम हो गए और बाकी पैरेललोग्राम। इसमें हमारे बनते हैं ट्राइंगुलर प्रिज्म, सेकंड वन आता है इसमें हमारा स्क्वायर प्रिज्म। स्क्वायर प्रिज्म में आप किसका एग्जांपल ले सकते हो? क्यूब, वेरी गुड। और रेक्टेंगुलर प्रिज्म। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आता है प्रिज्म के बाद पिरामिड्स। पिरामिड्स क्या होते हैं? व्हाट आर पिरामिड्स? पिरामिड्स is a solid whose base is a polygon. A solid whose base is a polygon, जिसका बेस क्या होता है? पॉलीगॉन। पॉलीगॉन आप क्लास 6 में पढ़ चुके हो। एंड अदर फेसेस आर ट्रायंगल्स with a common vertex। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, सॉलिड्स आपको पता चल गए जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट होती है, सरफेस होते हैं। पॉलीहेड्रन और सरफेस बॉन्डेड बाय प्लेन्स, जिसमें हमारे क्यूब, क्यूबाइड आता है, कोन और सिलेंडर नहीं आते। रेगुलर पॉलीहेड्रन जिनके फेसिस जो है कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जिनके फेसिस जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दे आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीहेड्रन। प्रिज्म पॉलीहेड्रन हुज बेस एंड टॉप आर कॉन्ग्रुएंट, जिनके बेस और टॉप, जैसे बेस और टॉप, ये प्रिज्म क्या होता है? पॉलीहेड्रन होता है जिनके बेस और टॉप क्या होते हैं? सेम होते हैं। एंड अदर फेसेस आर पैरेललोग्राम, और दूसरे फेसेस क्या होते हैं? हमारे पैरेललोग्राम की शेप में होते हैं। तो क्यूबाइड, क्यूब, ये क्यूबाइड क्यूब भी ले सकते हो, और दिस क्यूबाइड इज आल्सो एग्जांपल ऑफ prism, this also an example of prism। next one is pyramid। पिरामिड एक सॉलिड होता है जिसका बेस तो पॉलीगन शेप में होता है, लेकिन बाकी ये एक बेस पॉलीगन शेप में हुआ और बाकी ट्रायंगुलर शेप में मीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पिरामिड। आपने मिस्र के पिरामिड्स के बारे में सुना होगा, लर्न अबाउट द मिस्र पिरामिड। एक और इसमें फॉर्मूला आता है स्टूडेंट्स, दैट फॉर्मूला इज नोन एज यूलर फॉर्मूला। ई साइलेंट है, यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला क्या कहता है? F प्लस V माइनस E इज इक्वल टू 2। F प्लस V
माइनस ई इज इक्वल टू 2, एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। यहां पर एफ किसको रिप्रेजेंट करता है? एफ रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ फेसेस। वी किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ वर्टिसेस। और ई किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ एजेस। ध्यान से सुनना सर स्टूडेंट्स, एफ नंबर ऑफ फेसेस, वी नंबर ऑफ वर्टेक्स एंड ई नंबर ऑफ एजेस। अगर ये हम सब फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड यूलर फॉर्मूला, और यही जस्टिफाई करता है कि कोई फिगर्स रिप्रेजेंट कर रही हैं या नहीं कर रही। आगे हम क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा कि आपको क्वेश्चन दिया होगा। जैसे अगर हम एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।